ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ से शुरू किया था बेटे? वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, राइट? इमेजिनरी नंबर इज व्हाट? एनी नंबर whose square is negative. Suppose x is a number, we square it, and in answer we get a negative number. For example, square of x is -4. Square of x is -4. Then x cannot be a real number, because if it was a real number, its square would not be negative. We know that square of 0 is 0. Other than 0, any real number you pick, its square is positive, right? कभी भी कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x यहाँ पर एक रियल नंबर है ही नहीं। x अगर रियल नंबर होता तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो हम यहाँ पर x को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। x क्या होता है बेटे? इमेजिनरी नंबर। तो x क्या होगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। जाहिर सी बात है x है -4 का स्क्वायर रूट इधर। व्हाट इज x हियर? x इज स्क्वायर रूट ऑफ -4. So square root of a negative real number is also called imaginary number, right? If I give you a negative real number, for example -2, and its square root is a negative, it is an imaginary number. Square root of a negative real number, it is imaginary. Remember this. Okay. So here x is an imaginary number. Here x is an imaginary number because square of x is negative, or you can say that x is a square root of a negative real number. X is a square root of a negative real number. So obviously every number has two square roots. So -4 will have two square roots. One is for plus, another is for minus. Plus or minus root over of -4. तो बेटा हमने पढ़ रखे थे रूट प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ -4 को कैसे लिख रहे थे, पढ़े थे लास्ट क्लास में कि 4 का रूट ओवर को 2 और -1 का रूट ओवर इज आई। रिमेंबर? इसको बोलते थे 2i। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2i। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2i और -2i. -4 has two square roots and they are 2i and -2i. Obviously every number has two square roots. Similarly this negative number will also have two square roots. One of them is 2i, the other one is -2i. You can do it for yourself. अगर आप 2i का स्क्वायर करो तो क्या होता है चेक करो। 2i का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1 -4 हुआ कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह -2i का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो बड़े माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ये माइनस गायब हो गया, वेनिस। 2 का स्क्वायर इज 4 और i का स्क्वायर क्या होता है -1, ये भी -1 इक्वल टू -4. So these are the two square roots of -4 and both of them are what? Imaginary numbers. Both of them are what? Imaginary numbers. Basically you can say that square root of any negative real number, that is imaginary. Okay, so square root of -4 is imaginary, square root of -9 are imaginary, square of -2 are imaginary. Any negative real number, its square root are imaginary. So that's it. This we discussed in the last class. I hope all of you remember, right? And we have Yes, sir. we have discussed Yes. what is I. I is root over of Square root minus. over of -1. I is root over of minus. Yes. -1. Yes. It is an imaginary number. It is called imaginary unit. इसको हम imaginary unit कहते हैं। तो जहाँ पर i यूज हुआ होगा आप समझ लेना कि वो i मतलब -1 का रूट ओवर है। अच्छा बेटा अगर आपको कोई पूछे कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1, जाहिर सी बात है भाई कि हर नंबर का 2 स्क्वायर रूट होता है, तो -1 का भी 2 स्क्वायर रूट होगा। तो देखते हैं वो क्या होंगे। सपोज x इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, लेट x इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसका मतलब x का स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा, राइट? यस सर. तो x को क्या लिखेंगे बेटे हम? प्लस और Yes, माइनस रूट ओवर ऑफ -1। रूट ओवर ऑफ -1. अच्छा तो प्लस और माइनस बेटे रूट ओवर -1 क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। तो x इज इक्वल टू आई और -i। तो -1 का दोनों स्क्वायर रूट निकल गए, एक है i दूसरा है -i, दे आर स्क्वायर रूट्स ऑफ -1। i का स्क्वायर करो -1 आएगा, -i का भी स्क्वायर करो -1 आएगा। कैसे? अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे
तो बेटे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, चला गया, उड़ गया। आई का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -1 होगा ना, ये माइनस का स्क्वायर गया प्लस हो गया, और आई का स्क्वायर इज -1, तो आता है ना इसका स्क्वायर -1, तो आई माइनस आई दोनों का स्क्वायर होता है -1, दे आर बोथ स्क्वायर रूट्स ऑफ -1। तो अगर मैं एग्जाम में डालूंगा तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -9 कर पाओगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -4 कर पाओगे? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो आपको ऐसे पूरा जरूरी नहीं कि लेट एक्स करके लिखने की, आप डायरेक्ट भी कैसे लिखोगे कि अगर आपको सवाल पूछता है कि फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ -4, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ -4, जैसे आप करते हो प्लस और माइनस रूट ओवर 9 प्लस और माइनस जैसे उसी तरह। तो प्लस और माइनस 4 का रूट ओवर क्या होता है 2, और -1 का रूट ओवर होता है आई, तो प्लस और माइनस 2i, इसके दो स्क्वायर रूट मिल गए, एक है 2i और दूसरा है -2i, सो दे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ -4, राइट, रिमेंबर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके, बस आगे चलते हैं, Yes, sir. आगे चलते हैं। तो बेटे और हमने क्या पढ़ रखे थे लास्ट क्लास में, पावर्स ऑफ आई के बारे में पढ़ रखे थे। पावर्स ऑफ आई के बारे में क्या पढ़ रखे थे कि हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे। पहला तो आई टू दी पावर 0 = 1 होता है, मैंने बताया था। आई का स्क्वायर होता है -1, ये भी हमने जान रखे थे। ऑब्वियसली भाई आई अभी प्रूव किया ना बेटा, आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई का स्क्वायर -1 ही होगा ना, यस। और आई का क्यूब क्या प्रूव किए थे, -i, Sir, -i. और आई टू दी पावर 4 क्या प्रूव किए थे, Sir, 1. 1। और क्या प्रूव किए थे बेटा, आई टू दी पावर 4m = 1 प्रूव किए थे। इसका क्या मतलब होता है, वेयर m इज इंटीजर, इसका क्या मतलब होता है कि आई का पावर अगर एक 4 का मल्टीपुल है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल में हमने किए थे कि आई का पावर 400 = 1, क्योंकि 400 4 का मल्टीपुल है। आई का पावर -24 = 1, क्योंकि -24 4 का मल्टीपुल है ना भाई? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. और बेटे क्या पढ़ रखे थे, आई टू दी पावर 4m + r = Sir, equal to IR. आई टू दी पावर r। आई आर नहीं पढ़ेंगे बेटे, उसको आई आर पढ़ देते हैं तो यह हो जाता है आई × r समझा जाता है, ये आई टू दी पावर r, या फिर आप बोल सकते हो आई रेज टू द पावर r, है ना, हमेशा पावर बोलो, आई टू द पावर r। इसको भी हमने प्रूव किए थे, हाँ लास्ट क्लास में प्रूव कर दिए थे। लास्ट क्लास का वीडियो भी मैंने डाला था, आप अगर ये भूल गए होगे तो रिवाइज करने के लिए वीडियो को फिर से देख सकते हो। सबका डेरिवेशन हुआ था, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर समझना चाहते हो यू कैन रीवॉच द वीडियो एंड लर्न, ओके, रीलर्न। तो बेटे इसका क्या हमने मतलब एग्जाम्पल में हमने इसको कैसे यूज़ किए थे, जैसे कि सपोज आपको मैं दूं आई टू दी पावर 25, तो हम क्या करेंगे कि आई का जो पावर दे रखा है 25 जो दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर और भी अच्छा होगा आप जरा दिमाग में सोच लो कि 25 का 25 4 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल होगा तो आई टू दी पावर 4 का डिविजिबल तो 1 हो जाता है, लेकिन 25 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करोगे, 25 का जस्ट पहला 4 से मल्टीपुल वाला एक नंबर, वो क्या है 24, क्या है Sir, 24। 24. तो हम ये जो 25 के जगह लिख सकते हैं 24 + 1 आई का पावर। अच्छा 4m मतलब 4 का मल्टीपुल, और ये +r। इधर जरा बेटे देखो 24 एक 4 का मल्टीपुल है कि नहीं, 4m है, एंड 1 इधर क्या है बेटे, r है, क्या है r। Sir, सो आई टू दी पावर 4m + r क्या होता है, आई टू दी पावर r होता है। तो मतलब आई टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये r इधर क्या है 1, आई टू दी पावर 1 = i। रिमेंबर और नॉट, लास्ट क्लास में पढ़े थे। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो सपोज मैं आपको दूंगा आई टू दी पावर 102, तो हम क्या करेंगे, 102 क्या 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं ना। तो 102 का जस्ट पहले आया का नंबर याद करो जो कि 4 से डिविजिबल है, 100, राइट। हाँ, The 100. तो क्या लिख सकते हैं 102 को, 100 प्लस 2। तो ये क्या होता है बट एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे गोल करके ऊपर फोरेम आर नहीं लिखना है, खाली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या है बेटे, ये है फोरेम और ये क्या है आर, देख रहे हो, फोरेम मतलब 4 का मल्टीपुल। तो क्या हो जाएगा, आई टू दी पावर आर मतलब आई टू दी पावर 2। So I to the power 2. तो ऐसे हमने किए थे, सीखे थे। और क्या पढ़े थे बेटे, 1/i इज इक्वल टू माइनस आई, ये भी हमने प्रूव कर रखे थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लास्ट क्लास में ये भी पढ़े थे क्या, कि 1 डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई। ये भी प्रूव किए थे, 1 डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई। उसका भी इस्तेमाल हमने किए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं आई टू दी पावर -25, तो बेटा आई टू दी पावर -25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/i टू दी पावर 25। 1 by I to the power 25. तो 1 बेटा आई टू दी पावर 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, So 24 plus 1. तो जरा डिनोमिनेटर को देखो, ये है 4m और ये है r, तो आई टू दी पावर 4m प्लस r क्या होता है, आई टू दी पावर r होता है, मतलब आई टू दी पावर 1, मतलब 1/i, और 1/i क्या होता है, -i होता है, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी ए भाई कुछ बोलो रे, क्यों साइलेंट Yes, रहते sir. हो, साइलेंट की मौन व्रत क्यों रखते हो। राजकुमार, पर्सनली बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ओके, पृथ्वीराज, Sir, बोला. ओके बोला, Yes, sir. Yes, sir. आयुष्कांत, 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 आयुष्कांत बेहरा, ओके ओके, देवराज, यस सर। ओके, आयुष्कांत, ओके ओके ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ तक बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, आगे बढ़े। अच्छा, और क्या फॉर्मूला हमने बेटे पढ़ रखे थे लास्ट क्लास में, कि आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1 और आई टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी पढ़ रहे So थे। 0. इसका मतलब क्या है कि ऐसे अगर 4 आई ऐड करने के लिए बोला है और उनका पावर अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से, तो सॉम हो जाता है 0। जिसकी एग्जाम्पल हमने दे रखे थे, आई टू दी पावर 105 प्लस आई टू दी पावर 106 प्लस आई टू दी पावर 107 प्लस आई टू दी पावर 108। 4 आई ऐड किया गया है और सबका पावर देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 105, 106, 107, 108। तो मिलाने से क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, So 0. बस, Sir, 0. वेरी गुड। और एक फॉर्मूला बेटे लास्ट क्लास में हम लास्ट को आई थिंक पढ़े थे या फिर नहीं पढ़े थे, तो अभी देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बेटे, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि आई का पावर सम इंटीजर प्लस आई का पावर दैट इंटीजर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको कोई पूछा आई का पावर 100 प्लस आई का पावर 102, क्या बोलोगे, So 0. 0 बोलोगे, है ना। आई का पावर इंटीजर प्लस आई का पावर उस इंटीजर में 2 ऐड करो, अगर ऐसा दिया है तो आंसर है 0। तो कैसे ये 0 होता है देखते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 जो हम लिख रहे हैं, अच्छा आई टू दी पावर n प्लस 2 को क्या मैं आई टू दी पावर n इंटू आई टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ,
ऐसा लिख सकता हूँ ना, x टू द Yes, पावर sir. m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, स्कूल में तो पढ़े थे ना। बस। Yes, sir. और बेटा i का स्क्वायर होता क्या है, i का स्क्वायर तो -1 होता है, -1. मतलब ये i का स्क्वायर जो लिखा है ये -1, तो ये i टू द पावर n और ये -1 इंटू i टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा माइनस i टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा मिलके तो 0. ओके। अच्छा, तो इसी को लेके एक सवाल क्रिएट करते हैं। सपोज मैं आपको पूछूंगा i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 12 प्लस i टू द पावर 14 प्लस i टू द पावर 16 प्लस i टू द पावर 18 इज व्हाट? Sir, 0. है तो 0. तरतर होके क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये दोनों को ऐड करने से 0 हो जाएगा, सही बात है। ये दोनों को भी ऐड करने से 0 हो जाएगा, क्योंकि i का पावर इंटीजर फिर उस इंटीजर प्लस 2, ये दोनों का ऐड 0, ये दोनों को भी ऐड कर दो 0, 4 14 16, लेकिन ये तो राश को बचेगा ना, इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। यू गेट इट? तो 18 को क्या Yes, लिख सकते sir. हैं? 18 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 18 का जस्ट पहला एक नंबर याद करो दिमाग में, कौन 4 से डिविजिबल है? 16, राइट? Sir, 16. 16. हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस 2, क्या लिख देंगे? 16 प्लस 2। I to the power 2. हाँ, ये 4m और ये r, तो हो जाएगा क्या? i टू दी पावर r, मतलब i टू दी पावर 2, which is what? Equal to -1. Or minus 1. Okay, very good. Okay. So, give me a second. I'm just turn on the fan. हाँ. Okay, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब बेटे हम एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नेम है, वो चैप्टर का नेम को हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नेम को पढ़ने के लिए पहले हमें एक जो नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर जो अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। हाउ डू वी राइट इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर को लिखा कैसे जाता है? तो इमेजिनरी नंबर तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि इफ देयर इज अ नंबर whose square is negative, or if there is a number which being squared gives us a negative number, that is called an imaginary number. कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव निकलता है तो उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। या फिर अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़े थे कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो इमेजिनरी नंबर निकलेंगे। रियल नंबर के दुनिया में कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता है, मतलब कोई रियल नंबर नहीं होता। हाँ, ओके, तो ये तो पता पड़े, लेकिन अभी देखेंगे उनको एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, तो देखते हैं। बेटे हमने बोले थे अभी आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये क्या है बेटे? एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन इसको क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, वी डोंट राइट इट लाइक दिस। क्यों ऐसे नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग होता है बेटे, इसे बहुत सारे एक्सप्रेशन अगर आप मिला दोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कम्बरसम हो जाएगा लिखना कि ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम इसको एक्चुअली में लिखते कैसे हैं? देखो बेटे, 2 का रूट ओवर को लिखते हैं √2 और -1 का रूट ओवर को लिखते हैं i। क्या लिखते हैं? i। पढ़ता है ना मैं, -1 का रूट ओवर इज i, तो इसको ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो सपोज मैं आपको बोलूंगा रूट ओवर ऑफ -9 क्या है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके? 9 का रूट ओवर होता है 3 और माइनस का रूट ओवर होता है i, 3i। अच्छा, इसको बेटे ये है क्या? अरे बेटे -9 का 2 स्क्वायर रूट होंगे ना, प्लस और माइनस, एक होगा खाली ऐसा, दूसरा आगे उसके आगे माइनस लग के ऐसा, राइट? 2 होता है ना, तो ये -9 का 2 स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट को क्या लिख बेटा? आगे एक माइनस है, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, फिर माइनस का स्क्वायर रूट इज i, तो -3i। तो -9 का 2 स्क्वायर रूट होता है ना, 3i - 3i। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे हम इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। तो इमेजिनरी नंबर एक्चुअली दिखते कैसे, मैं लिख देता हूँ
इमेजिनरी नंबर्स दिखते कैसे हैं? सम रियल नंबर इंटू आई। अगर एक रियल नंबर में आई मल्टीप्लाई करके आपको दिया है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि 3i, 3i में क्या है? 3 एक रियल नंबर है, उसके साथ आई मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो ये पूरा नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना? इमेजिनरी नंबर। वेरी गुड। अच्छा, आई होप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इमेजिनरी नंबर होता क्या है, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो ये गया इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट अभी इधर लिखेंगे बेटे, कभी भूलना मत। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये क्या बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है। मतलब क्या होता है बताए? सपोज आपको कोई बोले कि 3i एंड -3i, इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, क्या होगा आपका आंसर? इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, क्या होगा आंसर? नाइदर ऑफ देम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेजिनरी नंबर बेटे रियल नंबर के तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं हुआ करते। तो ना तो 3i इज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो -3i इज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यू गेट माई पॉइंट सो फार? हेलो, यस सर। ये जीरो Yes, से sir. बड़ा भी नहीं होता है, ये Yes, sir. जीरो से Yes, छोटा sir. भी नहीं होता है, ये भी जीरो से बड़ा नहीं होता है कि छोटा नहीं होता है। ये सब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटे? कि इमेजिनरी नंबर्स डू नॉट फॉलो order pattern like real numbers. रियल नंबर के तरह इमेजिनरी नंबर ऑर्डर पैटर्न फॉलो नहीं करते। जिसे हम बोलते हैं ना बेटे कि 5 3 से बड़ा होता है, 3 5 से छोटा होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर के केस में हम वैसा नहीं बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर उस इमेजिनरी नंबर से छोटा है या फिर ये इमेजिनरी नंबर उस इमेजिनरी नंबर से बड़ा है। जैसे कि हम नहीं बोल सकते कि 2i 3i से छोटा है, हम नहीं बोल सकते कि 2i 3i से बड़ा है, ये भी हम नहीं बोल सकते। दे डू नॉट फॉलो ऑर्डर पैटर्न लाइक रियल नंबर के तरह ऑर्डर पैटर्न फॉलो नहीं करते। तो कोई भी इमेजिन नंबर दूसरे इमेजिन नंबर से बड़ा नहीं होता कि छोटा नहीं होता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर गाइस यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे बेटे कि 0 इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। 0 भी एक इमेजिनरी नंबर है। 0 रियल नंबर भी है, वो तो पता है, स्कूल में पढ़े तो पता है 0 इज ए रियल नंबर। 0 इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। 0 को हम एक इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बेटे? क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो ना 0 इंटू आई। यू गेट इट? आप लिख सकते हो कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -0। ये भी तो सही है ना, -0 जो होता है 0 वही होता है, इसीलिए हम 0 को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। गेट माई पॉइंट सो फार? 0 इज बोथ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। क्लियर यहाँ तक बेटे सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो आई होप ये जो मज़ेदार कुछ फैक्ट्स थे इमेजिनरी नंबर के बारे में, वो फैक्ट्स आप समझ गए होंगे और उसको अप्लाई भी कर पाओगे। टेक द स्क्रीनशॉट 1 सेकेंड। यस, टेक इट। डन? Yes, sir. ओके, टेक इट।
Done. Okay, take it. Done. Okay, take it. Done. Yes, sir. Take it. Done. Yes, sir. Take it. Done. Okay. डन सर। बस। तो बेटे अब तक हमने क्या पढ़ रखे थे कि इमेजिनरी नंबर के बारे में सारे चीज़ें डिस्कस किए है ना। इमेजिनरी नंबर होता कैसे है, उसका पावर कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ें निकाल चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि 2i का पावर 3 इज व्हाट। अच्छा बेटा 2i का पावर 3 का यही तो मतलब होता है ना कि 2 का पावर 3 इंटू i का पावर 3, क्योंकि ab का पावर Yes, m sir. इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। यस सर। 2 का पावर 3 इज 8 और i का पावर 3 अभी क्या पढ़े थे, माइनस i। द माइनस आई। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 8i। क्या लिखेंगे, माइनस 8 आई। माइनस 8i। सपोज मैं आपको पूछूंगा कि 2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, i का स्क्वायर होता है -1। तो गया ना बेटे -4। क्लियर? अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, अब बेटे एक मतलब एक नया चीज, कंप्लीटली नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक टाइप का नंबर है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम अभी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में जानना जरूरी था। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि एनी नंबर व्हिच इज और कैन बी expressed in the form of a plus ib, where a and b both are real numbers, is called a complex number. complex number। फिलहाल ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मल डेफिनेशन। वो क्या बोल रहा है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, हुई चीज जो कि है और कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में, वो फॉर्म क्या दे रखा है, a प्लस ib। अगर कोई भी नंबर को हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी वो इस फॉर्म में है, जैसे कि a प्लस आई बी, वो फॉर्म है a प्लस आई बी, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड a b क्या है, a एंड b आर रियल नंबर्स। व्हाट आर a एंड b? a एंड b आर रियल नंबर्स। तो फिर से बोल रहे हो बेटे, कोई भी नंबर जो कि ऑलरेडी इस फॉर्म में है या फिर उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसी फॉर्म में a प्लस आई बी, where a b both are real numbers, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 प्लस 3i। बेटे ये नंबर को जरा ऑब्जर्व करो, ये नंबर a प्लस आई बी नंबर के फॉर्म में है ना बेटे, देख लो। Yes, sir. a के जगह 2 लिखा है, Yes, b sir. के जगह 3 लिखा है, a के जगह 2, b के जगह 3 लिखा है। Here a is equal to 2, b is equal to 3, both are real numbers, right? a b दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ये जो a b है ना बेटे, ये भी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। और 2 मतलब a प्लस आई बी, ये पूरा नंबर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं नंबर को, द कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं,
2 माइनस 3i। सर क्या बोल दिए? आप तो बोल रहे थे ना फॉर्म में कि a प्लस आई बी फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म होना चाहिए। ये क्या कर दिए, 2 माइनस 3i लिख दिए हैं। और ये कैसे इस फॉर्म में आ गया? किस कैसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं? अरे भाई जरा ध्यान जरा देखो, मैं बोला ना कि एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। अगर कोई नंबर ऑलरेडी ऐसा फॉर्म में है या फिर उसको ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बेटा ये जो लिखा सर है इसे ना, हम एक्सप्रेस ये जो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना सर? यस, ये जो लिखा है ना बेटा 2 माइनस 3i, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 प्लस माइनस 3 3i। Yes, sir. तो आप जरा देखो, इधर a क्या है बेटे? 2 है, और b क्या है? माइनस The minus 3. -3। तो a प्लस आई बी फॉर्म में है ना बेटे। सो दिस इज ऑल्सो एन इमेजिन, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके ओके, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ Yes, sir. हाँ सर हाँ यस बताओ। सर हम 2 -3i लिखे हैं सर, वहाँ 2 -i3 लिखना है। आई अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा बेटा मैं स्कूल वो में सर पढ़ा, एक डाउट। यस यस बोल रहा हूँ। बेटे स्कूल में पढ़े थे ना, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, आई बी एंड बी आई दे आर द सेम। मल्टीप्लिकेशन Okay, sir. Sir. गॉट इट? ओके यस सर, यस सर, अब क्लियर हो गए सब कंसेप्ट पूरा क्लियर? ओके यस सर, Yes, sir. ओके Yes, ठीक। sir. तो अगर मैं Yes, sir. और एक एग्जाम्पल लिखते हैं और आप मुझे बोलोगे उसमें ए क्या है बी क्या है। सपोज मैं लिखूंगा -2 माइनस 3i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें ए क्या है बेटे? -2, -2 और बी क्या है? -3। -2। यू गेट इट? Minus 3. हाँ वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. तो मैं अभी लिख देता हूँ कि हाउ डू कॉम्प्लेक्स नंबर लुक, हाउ डू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लुक। कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिखते हैं, सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, है ना? ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है तो उस नंबर को, ये पूरा जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? और बेटे आप इन दोनों को ऐड करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना बेटे, ये पूरा एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ना ये -2 से 3i माइनस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बस ये एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। गेट माई पॉइंट्स ऑफ है? अच्छा ओके, अब बेटा हम पढ़ेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर पार्ट क्या होते हैं? लिसनिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं देखते हैं बेटे। हाँ, लेट ए प्लस आई बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मानो ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर ए बी बोथ आर रियल नंबर्स। ये जो ए बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए, ए प्लस आई। इसमें ये जो ए है ना बेटे, ये ए को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ए को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्या बोला जाता है बेटे? रियल पार्ट। हाँ, और ये जो बेटे बी जो आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना बी, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बात समझे बेटे? ए को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Imaginary द part. कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, No, sir. नो सर। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मैं आपको बोलूँगा 2 प्लस 3i, इसमें रियल पार्ट है क्या और इमेजिनरी पार्ट है क्या?
Sir, real part is 2 and imaginary part is 2i. मैं क्या बी खाली बी इज इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है ना जो Sir, बी, The imaginary part is 3. हाँ इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, थ्री, जो आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir, got it. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. अब बड़े एक इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे, है ना, नोट कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स are usually denoted by the letter Z. the letter Z. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, Z इज इक्वल टू 2 + 3i. तो इधर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे, इसको हम जेड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जेड. मतलब जहां पर भी हम जेड यूज करेंगे आप जान लोगे कि सर जेड मतलब 2 + 3i को यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना होता है तो दोनों को तो जेड नहीं बोल सकते. सपोज और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे यूज करना है 3 + 4i, तो इसको भी जेड, इसको भी तो जेड नहीं बोल सकते. एक को Z1 बोलेंगे और एक को Z2 बोलेंगे. यू गेट इट? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड के द्वारा डिनोट करते हैं. तो जहां पर भी हम Z1 लिखेंगे आप समझोगे कि 2 + 3i लिखा है. जहां पर Z2 लिखेंगे आप समझोगे कि 3 + 4i लिखा है. ठीक है, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके. तो लेट Z is equal to a + ib where a b both are real number. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हूं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ए क्या है बेटे, ए इज रियल पार्ट ऑफ द The real कॉम्प्लेक्स. part of complex number. और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, अब इधर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का को क्या बोल रहे हैं, जेड. मतलब ये रियल पार्ट ऑफ Z. जेड है. क्या है बेटे? रियल पार्ट ऑफ जेड. और इसको हम कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे लिखते हैं, आर ई ब्रैकेट के अंदर जेड. यू गेट इट? ए इज इक्वल टू आर ई ब्रैकेट के अंदर जेड. और बेटे जो बी है ना, बी को क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का The imaginary part of Z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. तो इसको कैसे लिखते हैं बताए शॉर्ट में? आई एम ब्रैकेट के अंदर जेड. यू गेट इट नाउ? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको लेके. क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल पार्ट and imaginary part of the following complex numbers. कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट देखेंगे. जैसे कि मैं सब लिखूंगा Z1 इज इक्वल टू B1, Z1 इज इक्वल टू -2 - 3i. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है बेटे? -2 है, राइट? The -2. हाँ. Yes, sir. और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? -3, The राइट? -3. जो आई के साथ जो मल्टीप्लाई है ना. अच्छा, तो बेटे देखो, आप अगर डायरेक्टली नहीं पता कर मतलब पता नहीं कर पा रहे हो कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है, जरा सोचो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एक्चुअली में a + ib फॉर्म में नहीं है. इसको आप और भी थोड़ा एक्सप्रेस अगर करते हो ऐसा, अब ये आता है a + ib फॉर्म में. और a को हम बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो b है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. ये है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट. गॉट इट? बीच में प्लस रहना चाहिए. कितनों का समझ में नहीं आया? सबको आया? हाँ. Yes, sir, got it. तो हम ओके तो हम इसको कैसे लिखेंगे बता बेटे? आर ई ब्रैकेट के अंदर Z1 इज इक्वल टू -2 एंड आई एम ब्रैकेट के अंदर Z1 इज इक्वल टू -3. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट -2 है, Z1 इज द कॉम्प्लेक्स, इसका रियल पार्ट -2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? -3 है. The -3. क्लियर? ओके, वेरी गुड. अच्छा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले जाओ. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सबका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ले जाओ स्क्रीनशॉट ले जाओ। डन। Yes, sir. Done, sir. ओके, टेक इट। डन। Done, sir. वेरी गुड। ओके, अब बेटा एक इम्पोर्टेंट बात सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अभी सीखेंगे। और ये क्या है बेटे कि ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटे दुनिया में जितने रियल नंबर होते हैं ना, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, और मैं आपको भी बताऊंगा कैसे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले आप जान लेते हैं कि दुनिया के सारे रियल नंबर जो हम स्कूल में पढ़े ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज Then ट्रू। not true. हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन सारे रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते। जिससे बेटे स्कूल में पढ़े थे ना कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी होते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कह सकते कि रेक्टेंगल सारे स्क्वायर नहीं होते हैं। यू गेट माई पॉइंट, रिमेंबर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो देखते हैं बेटे कैसे कैसे सारे रियल नंबर्स कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। बेटे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रियल नंबर बताओ कोई बेटे, 10 इज ए रियल नंबर, राइट? 10 एक रियल नंबर है। अब मैं बोलता हूं कि 10 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब कैसे भला? देखो अभी पढ़े थे ना कि अगर कोई नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में है, या फिर अगर उसको वो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वेयर ए बी बोथ आर रियल नंबर्स, रिमेंबर? Yes, sir. तो बेटे जो 10 लिखा है ना, क्या मैं 10 को लिख सकता हूं 10 प्लस 0 इंटू आई? 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो 0 इंटू आई भी 0 हो Yes, जाएगा, और sir. 10 प्लस 0 इज 10। तो इसका मतलब हम 10 को a प्लस आई बी फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? राइट, देयरफॉर Yes, sir. 10 is a complex number. 10 is also a complex number. जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो को भी हम लिख सकते हैं। हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 0 प्लस Sir, 0 0 plus 0 I. है ना? देयरफॉर 0 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुआ करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर बेटे? सबका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Done, sir. ओके, अब देखेंगे बेटे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। मतलब दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें होता है ना इंसान को अच्छा इंसान, बुरा इंसान, उसी तरह ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर? देखते हैं ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कि बेटे जेड इज कॉल्ड ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर if and only if imaginary part of z is equal to 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया ना बेटे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। मेरा बात समझ रहे हो? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम उस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल
अरे समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. बड़े टू इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि टू रियल नंबर है, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अभी बताया था। अच्छा, टू को हम लिख सकते हैं ना, 2 + 0i। तो मानो ये 2 को मैं एक नाम देता हूँ, लेट z इज इक्वल टू 2। तो बड़ा भी बताओ, ये z जो 2 है, ये z ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? जो i के साथ जो मल्टीप्लाई है, 0। देख रहे हो ना? हाँ, तो चेक करो, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ना बेटे? अरे देख रहे हो, इसलिए हम इसको बोलेंगे हियर। अरे समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. z equal to 2 is a purely real complex number। क्यों उसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं? क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो बेटे क्या हम ये बोल सकते हैं, नोट में लिख देते हैं, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल रियल नंबर्स, दुनिया के जितने सारे रियल नंबर होते हैं ना बेटे, वो सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? अभी बोला था, ब्रह्मांड का Yes, सारे sir. रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और उनको एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। दे आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दुनिया के जितने रियल नंबर है ना बेटे, उनको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली उनको एक नाम, स्पेशल नाम दिया जाता है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कारण क्यों, ऐसा नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि रियल नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। देखो, जैसे कि 2 का इमेजिनरी पार्ट 0 मैंने दिखा दिया, इसीलिए रियल नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? Yes, ओके, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, अब आते हैं बेटा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह और एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा नहीं, ये एक प्योरली इमेजिनरी, मतलब शुद्ध इमेजिनरी है ना बेटे। हाँ, जैसे वो शुद्ध रियल नंबर था, शुद्ध रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन शुद्ध रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ रहे हो? ये शुद्ध Okay. इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, तो किसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी? देखते हैं कि z इज कॉल्ड अ प्योरली imaginary complex number if and only if its real part is 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है ना बेटे, तो हम उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसका रियल पार्ट 0। क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सपोज मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू 2i। आज बेटा 2i हमें पता है ना, 2i इज एन इमेजिनरी नंबर, अभी पढ़े थे जस्ट, मतलब 2i इज एन Yes, sir. इमेजिनरी नंबर। Yes, sir. हाँ, तो हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आप 2i को ऐसे लिख सकते हो ना, 0 + 2i। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं सर। Yes, sir. हाँ, तो हुआ ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर, a + i भी फॉर्म में है। यस Our सर। real part is 0. एंड इसका रियल पार्ट क्या है इधर? 0 Sir, 0. 0। and imaginary part is 2i। यस, एंड नहीं, आई नहीं, जो आई के साथ Only two. हाँ, Sir, only 2. यस, आई नहीं लगाना। ओके, वेरी गुड। सॉरी सर, मिस्टेक हो गया था। हाँ, अरे होता है, और हम किस लिए है? मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ना। ओके, तो ये z1, और एक लिख देता हूँ, सपोज हम लिखते हैं z2 इज इक्वल टू -2i।
इसको हम लिख सकते हैं ना बेटे 0 माइनस 2i। 0 Yes, माइनस sir. 2i मतलब क्या होता है 0 प्लस माइनस 2 इंटू आई है ना, a प्लस आई भी फॉर्म में हो गया। हाँ हो गया a प्लस आई भी फॉर्म में बस। यस सर। तो इसका रियल पार्ट है क्या 0 सर 0 और इमेजिनरी पार्ट है क्या सर -2। हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं दे आर प्योरली इमेजिनरी क्योंकि उनका रियल पार्ट 0 है। क्लियर ओके गॉट इट। यस Yes, सर। sir. हाँ तो इधर एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं। अच्छा इसको देख के ये पता नहीं चल रहा है कि ऑल इमेजिनरी नंबर्स, वही बोला जैसे दुनिया के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसी तरह दुनिया के सारे इमेजिनरी नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और हम उनको बोलते हैं ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड purely imaginary complex number. You got it? यस सर गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir, got it. Yes, sir, got. सारे इमेजिनरी नंबर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हाँ जैसे कि ये 2i माइनस 2i हालांकि इमेजिनरी नंबर है बट दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हम उनको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके अच्छा ये गया। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट 1 सेकंड। यस टेक इट। सर डन। डन ओके Yes, sir. ओके। और बेटे इधर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे। वो नोट क्या है बेटे कि 0 इज बोथ अ प्योरली रियल and a purely imaginary प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कि 0 बोथ प्योरली रियल होता है एंड प्योरली इमेजिनरी भी होता है। और 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो हमें पता है 0 को 0 प्लस 0 लिख सकते हैं लेकिन 0 को हम प्योरली रियल एंड प्योरली रियल वो दोनों ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। चेक करते हैं कैसे बेटे कि बेटे लेट z इज इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या होता है बेटे 0 प्लस 0i राइट। अच्छा बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा क्या सर 0। अच्छा अगर रियल पार्ट इसका 0 है मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है राइट। यस सर। हाँ और इसका इमेजिनरी पार्ट है क्या वो भी 0। सर 0। तो इमेजिनरी पार्ट 0 है इसका मतलब प्योरली रियल भी है। सर प्योरली रियल नंबर। यू गेट माय पॉइंट 0 इज बोथ है Yes, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन Done, sir. डन सर। ओके वेरी गुड। और बेटे जो खाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जैसे कि 2 प्लस 3i ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ये ना तो प्योरली रियल होते हैं ना प्योरली इमेजिनरी होते हैं। इनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर खाली कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। ये ना तो प्योरली रियल क्योंकि बेटे प्योर जैसे हम बोलते हैं ना अरे बेटे जैसे बोलते हैं ना कि मतलब शुद्ध घी मतलब क्या होता है घी में कोई मिलावट नहीं हुआ होगा तो हम बोलते हैं शुद्ध घी है ना। उसी तरह शुद्ध रियल कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और प्योरली इमेजिनरी मतलब उसके रियल पार्ट 0 होगा। सर रियल पार्ट इज 0। लेकिन इसमें रियल पार्ट ने ना तो रियल पार्ट ना तो इमेजिनरी पार्ट के कोई भी 0 नहीं सब मिलके दोनों है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको सर खाली कॉम्प्लेक्स सर ये मिला सर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ ये मिलावटी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके ठीक है मिलावट मिलावटी मिलावट वाला वाला है, कॉम्प्लेक्स यस मिलावटी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का ये। ओके अब खाली एक लास्ट चीज देखो बेटे कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉल्ड नो ऐसा नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या था पता है? जैसे, अरे बेटे जैसे एक इंसान ना, जैसे कि इंसान ना, सपोज मतलब क्या, बाहर मतलब कहीं घूमने जाते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप लगा के जाते हैं, मतलब वो अलग इंसान थोड़ी ना हो जाते हैं, खाली उनका चेहरा बदल जाता है, राइट? अरे वो अलग इंसान थोड़ी ना होते हैं, खाली उनका चेहरा बदल जाता है, राइट? घर में एक इंसान, बाहर जाते हैं मेकअप वेकअप लगाएगा और एक इंसान। यू गेट माई पॉइंट? बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग चेहरा उसका बना सकते हैं, और उनमें से एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि सिर्फ आप पढ़ोगे आपके सिलेबस में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि a प्लस आई बी फॉर्म अभी जो पढ़े ना बेटे, a प्लस आई बी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को और एक तरह से भी लिखा जा सकता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बोलोगे सर आपने तो जब से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना शुरू किए, आज से पूरा तो शुरुआत से ही कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 + 3 आई 2 - 3 आई ऐसे करके लिख रहे हो, मतलब आप तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख रहे हो, तो पढ़ा क्यों रहे हो? इसको सेपरेटली बोल क्यों रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म? क्यों बोल रहे हो? कल समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 + 3 आई, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ा होगा, कल पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम a + i इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हालांकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कल पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, बस खाली इतना जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चेहरा अगर ऐसा दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का? हेलो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर वेरी गुड। तो बेटे आज के यहीं पर समाप्त होता है, तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। डन सर। डन सर। ओके। तो बेटे कल थोड़ा ज़्यादा टाइम क्लास करेंगे, Done, sir. 4:15 से शुरू होगा आपका, जैसे शुरू होता है 4:15 से 5:15 ना करके थोड़ा ज़्यादा समय कल करते हैं, 5:45 तक ले जाते हैं खींच के। कल एक दिन बस एडजस्ट कर लो, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर Okay, sir. कल हम Yes, sir. खत्म करें नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. नेक्स्ट किसी करें। अच्छा, आपके जो हाफ ईयरली होगा 9 दिसंबर को, आप जान लो कि आपका जो मैं पढ़ा चुका हूँ, सेट, ट्रिगोनोमेट्री और क्या पढ़ाया हूँ बेटा? सीक्वेंस सीरीज, राइट? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, बस यही तीनों आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? सेट, ट्रिगोनोमेट्री, सर। हाँ सर वो भी ऑनलाइन ही देना है? हाँ, जैसे इसका पहले एग्जाम हुआ था वैसा ही। ओके, एक सेकंड रुको जरा।